हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। 3 न्यूमेरिकल हमने किए हैं। अब हम फर्दर आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं बिफोर एडिशनल, उसके बाद में जो एडिशनल में नेसेसरी होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, जो बोर्ड में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, उन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं। ठीक है, चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 2.4 पेज नंबर 87 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2.4 पेज नंबर 87 एनसीईआरटी। A spherical conductor of radius 12 सेंटीमीटर, स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, इट कैन बी रिटन एज 0.12 मीटर, हैज ए चार्ज 1.6 10⁻⁷ कूलम, Q 1.6 10⁻⁷ कूलम, distributed uniformly on its surface. What is the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवा रहा है। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। पहली बात आप ये देखिए, स्फेरिकल कंडक्टर है, द चार्ज इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, देन द सरफेस बिकम्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग होता है द पोटेंशियल ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम, सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, नो वर्क इज टू बी डन टू मूव ए वन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। इसी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस होने की वजह से द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर इज 0। इट इज because the surface is equipotential. Surface is equipotential, hence the electric field inside the spherical conductor is 0. Now come to the second point. Just outside the sphere means at the surface. Second point, just outside the sphere, that is at the surface, electric field E is equal to 9 to 10⁹ Q upon capital R, 9 to 10⁹ 1.6 10⁻⁷ divided by 0.12। बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू इसकी आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज नॉट टू डिफिकल्ट टास्क। मैं इसको नहीं करूंगा, आपको करना है। ट्राई योर सेल्फ, यू विल हैव टू कैलकुलेट योर सेल्फ। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। व्हाट इज द third point? At a point 18 centimeter from the center of the sphere means outside. This is small r, 18 centimeter from the center, that is 0.18 meter. E is equal to 9 to 10⁻⁷ whole square, 9 Q upon small r square. Substitute here the value 1.6 10⁻⁷ divided by 0.18 0.18। Try yourself। अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन 2.4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2.5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.5। व्हाट इज 2.5? Question number 2.5 is
A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance 8 picofarad. Question number 2.5. C naught 8 pf 8 into 10 square minus 12 farad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? D is equal to D0 by 2. D0 is the separation between the plates when the medium between the plates is air or vacuum. And the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6. K is equal to 6. As we know, C naught is equal to epsilon naught A upon D naught, and C is equal to epsilon K epsilon naught A upon D. It can be written as K epsilon naught A upon D naught by 2. 2 ऊपर गया 2K C. Epsilon naught A upon D by 2 D naught is the value of C naught, implies that C is equal to 2K C naught, 2 into 6 into 8, 96 pf. This is your answer. करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको नोट डाउन करिए. Now come to the question number 2.6. Is 3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad, are connected in series. Question number 2.6. C1, C2 and C3 all are given of 9 pf in series. What is the total capacitance of the combination? बिल्कुल सिंपल है. First 1 upon C is equal to 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3. This is 1 upon 9, 9, 9, 3 upon 9, 1 upon C is equal to 1 upon 3, C is equal to 3 pf. Net capacitance in series is 3 picofarad. सेकेंड पार्ट की बात करते हैं. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 volt supply. Here is C1, C2 and C3 connected to 120 volt supply. C1, C2 and C3 potentials are V1, V2, then V3. अब इसमें आप एक बात नोटिस करिए, सीरीज के अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो सेम रहता है, बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट. बट आप क्या लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट में, एज द कैपेसिटेंस ऑफ ईच capacitor is same, so the potential difference across each capacitor is equal. Hence potential difference is equally divided. तो कितना होगा? V1, V2 and V3 is equal to V by 3. This is 120 by 340 volt. इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले नेट कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट कर चुके हैं 3 पिकोफैरड. इनिशियली आप क्या फाइंड आउट करें, इसमें फाइंड आउट करें
चार्ज। ऑल्टरनेट मेथड देखिए मैं इसमें आपको बता देता हूं, ऑल्टरनेट मेथड क्या पॉसिबल हो सकता है। ऑल्टरनेट Q is equal to CV, C is 3, this is 120, 360 PC, पिको कूलम। आप देखिए चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर इन सीरीज इज सेम, तो आप क्या लिखेंगे, V1 is equal to Q upon C1, this is 360 divided by 9, this is 40 volt. In the same way V2 is equal to 40 volt and V3 is equal to 40 volt. इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा शॉर्ट मेथड ये है, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अगर कैपेसिटेंस सेम है, सीरीज में ऐड हुए हैं, तो पोटेंशियल जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2.7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.7 क्या कहता है, 3 capacitors of capacitances 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad, C1 2 pf, C2 3 pf and C4 4 picofarad, all are connected in parallel। सबसे पहले पूछा है नेट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 प्लस 3 7 5 प्लस 4 9 pf। Second part, determine the charge on each capacitor if the combination is connected to 100 volt supply. 100 volt supply, 1 2 then 3, this is connected to 100 volt supply C1, C2 and C3। पैरेलल के अंदर आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, चार्जेस डिफरेंट होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज 100 volt, so Q1 is equal to C1V, Q1 is what, Q1 is 2 into 100, this can be written as 200 PC, पिको के अकॉर्डिंग चलेगा। Q2 C2V 3 into 100 300 PC and Q3 is equal to C3V, this is 4 into 100, this is 400 pico। तो इस तरीके से हमने अपने ये 2.7 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को नोट करिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। वैसे मैं जानता हूं कि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन प्योर स्टेट के अंदर नहीं आएगा, प्योर सीरीज में या प्योर पैरेलल के अंदर नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.8 सेम पेज पर है। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each has an area 6 into 10 raised to the minus 3 meters square, 6 into 10 raised to the minus 3 meters square, and the distance between the plates is 3 mm, small d, 3 mm, 3 into 10 raised to the minus 3 meter. Calculate the capacitance of the capacitor if the capacitor is connected to 100 volt supply, V is equal to 100 volt. What is the, calculate the capacitance कह रहा है, what is the charge on each plate of the capacitor, चार्ज भी आपसे पूछ रहा है और कैपेसिटेंस आपसे
पूछ रहा है, तो कैपेसिटेंस को क्या करेंगे, मीडियम क्या है, मीडियम इज ए। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की हम बात करते हैं 8.85 10⁻⁻12। ए की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻³ पावर कैंसल्ड 2 टाइम्स हो गया 0 7 7 2 पॉइंट पर डेसिमल -12 और 17.7 पिको फैरड इसका आंसर आपका आ गया। अब लास्ट क्या कहता है पार्ट, लास्ट कहता है कि आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। यू हैव पोटेंशियल, यू हैव कैपेसिटेंस, तो Q इज इक्वल टू CV 17.7 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय V इज 100, तो 17.7 10⁻10 कूलम। दिस इज द करिए। 1 more question, question number 2.9. Question number 2.9. Explain what would happen if the capacitor given in exercise 2.8, a 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, यानी इस कंडीशन में T इज इक्वल टू डी हो गया 3 मिलीमीटर की है 3 इंटू 10⁻³ मीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 6 इज गिवन वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स while the voltage supply remain connected। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अपना C डैश निकालते हैं। दिस इज KC क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं। K इज 6, दिस इज 17.7, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी क्या आ जाएगी, दिस इज पिको फैरड में आपका आंसर आएगा। और क्या कहता है, व्हाट हैपेंड, फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। व्हेन सप्लाई इज रिमेन कनेक्टेड देन ओनली द चार्ज ऑन द प्लेट्स विल चेंज। तो Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू V। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो क्या होगा 6 इंटू 17.7 इंटू 10⁻⁻12 पिको को चेंज किया हमने इंटू 100, तो 6 इंटू 17.7 10⁻10 कूलम इट विल बी द आंसर। सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि जब हम प्लेट के बीच में चाहे प्लेट की सेपरेशन को बढ़ाएं घटाएं कुछ भी करें, लेकिन अगर सोर्स कनेक्ट है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता, चेंज आता है केवल चार्ज स्टोरेज में चेंज आता है। क्योंकि सेपरेशन के चेंज करने से, माइका शीट के या किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के रखने से क्या चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगी, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, Q चेंजेस अकॉर्डिंगली कैपेसिटेंस। चलिए सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं। आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, when the supply is disconnected then the charge on
capacitor will be of previous charge, that is Q. Q होगा then नहीं. So the potential difference across the capacitor will change. This is Q is equal to C dash into V dash, implies that V dash is equal to Q upon C dash. इससे आप इसकी वैल्यू को V डैश की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. बहुत आसान तरीका है. Q आपको पता है 17.7 10⁻⁻10 है. C डैश की वैल्यू यहां है, तो अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. लेस देन 100 वोल्ट आपकी वैल्यू आएगी. Before completing or starting the additional questions, only 2 questions are remaining. We are completing just now. करिए आप. Question number 2.10. What is the question number 2.10? A 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. C 12 picofarad, that is 12 into 10⁻⁻12 farad, connected to 50 volt. How much electrostatic energy is stored in capacitor? That is U is equal to half CV square. Half C is 12 into 10⁻12. 50 multiplied by 50. 6 into 25 into 10⁻10. दो डेसिमल एडजस्ट हो गई हैं. 150 minus 10 1.5 10⁻⁻8 हाफ CV स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया. और हम चलते हैं बिफोर एडिशनल से लास्ट क्वेश्चन 2.11. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन कहता है? इस 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in this process? C1 is equal to 600 picofarad. V1 is equal to what is supply? Supply is 200 volt. C2 is 600 picofarad. V2 is 0 क्योंकि चार्ज नहीं किया गया है. और इसमें आपको एनर्जी लॉस निकालना है. एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे? डेल्टा U is equal to C1 C2 upon twice C1 plus C2 V1 difference V2 whole square. सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू 600 10⁻12 600 10⁻12. जब हम दोनों को ऐड करेंगे 1200 10⁻12 और दिस इज 200 मल्टीप्लाई बाय 200. क्योंकि 200 में से 0 घटाएंगे कुछ चेंज नहीं आएगा. पावर एक बार पावर से पावर कट गई और ये आपका कट गया 2 टाइम्स कट गया. ये आपका कितनी बार कटा? 3 टाइम्स कटा. पावर को चेक करिए 1 2 3 4 5 6 10⁻⁻6 कितना हो गया? 3 2 जा 6 6 2 जा 12. This is 12 delta U. This is the loss of energy. तो इस तरीके से हमने एडिशनल से पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने कंप्लीट किया. अब हमारा जो मोटिव बचा कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करना जो फिगर बेस्ड हैं
एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम दिए हुए हैं, इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रेफरेंस बुक से कराने होंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बने, क्योंकि एग्जाम में आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रैक्टिस हम कराएंगे। उन क्वेश्चंस को जो लेके चलेंगे, कुछ एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। नेक्स्ट वीडियो आए इससे पहले जितने क्वेश्चंस 2.4 से लेकर के 2.11 तक हमने इसको सॉल्व कराए हैं, एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लें, उनके कॉन्सेप्ट्स देख लें, क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है, किस तरीके से वैल्यू में वेरिएशन होता है, किस तरह की वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है। हमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के अंदर हमें जो यूनिट सिस्टम यूज करना है वो केवल ऐसा ही यूज करना है, इसके अलावा कोई सिस्टम यूज नहीं करना है। सीजीएस और एफपीएस का तो बिल्कुल यूज नहीं करना। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो आए उससे पहले आप लोग सब कुछ इसको रिवाइज कर लें, सब कुछ बिल्कुल क्लियरली गिवन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मुझको बताएं, मुझे भी प्रमोशन मिलेगा, मैं अच्छा आपको कंटेंट दूंगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है उससे पहले, प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे पहले आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। मेरे साथ बने रहिए, इतने मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।